ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع صوفیانہ شاعری میں ذکر الہی کا پرچار۔ تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے، فرصت کے لمحات اور تندرستی کو غنیمت جاننا چاہیے اور تمام اوقات ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے۔ جو عمل شریعت غرا کے موافق کیا جائے ذکر ہی میں داخل ہے، اگرچہ خرید و فروخت ہی کیوں نہ ہو۔ پس ہمیں تمام حرکات و سکنات میں احکام شریعہ کی رعایت کرنا چاہیے تاکہ سب کچھ ذکر میں شامل ہو جائے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والا اور جو نہیں کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر ہے کیا؟ ذکر بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال حلال اور پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح آدمی کا وجود ذکر الہی سے کفر اور شرک کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح کپڑا صابن سے صاف ہو جاتا ہے، یہی حال ذکر اور نفس کا ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح ذکر الہی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جس طرح بارش خشک زمین کو سرسبز کر دیتی ہے، اسی طرح ذکر الہی مردہ ایمان کو زندہ کر دیتا ہے، اور جس طرح پھل درخت کے لیے زینت ہوتا ہے، اسی طرح ذکر الہی ایمان کی زینت ہے۔ وہ کفر و ضلالت کے اندھیرے کو مٹا کر ایمان کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ جس دل میں ذکر الہی نہیں، وہ ببول کے درخت کی طرح ہے یا بغیر نمک کے کھانا ہے۔ جس طرح اللہ کے ذکر کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کا دل ذکر الہی کے بغیر علائش سے پاک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ذکر کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے انہیں اطمینان ہو گیا۔ خوب سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو ہی جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی اور خوش انجامی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے: اے ایمان والو، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی لوگ تو گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رات کی تاریکی میں مخلص عبادت اور غور و فکر کو بلند مقام حاصل ہے۔ دن کو جاگنا تو معمول ہے، لیکن دن بھر کی محنت کے بعد جب جسم آرام کا تقاضا کرتا ہے، جاگنا اور جاگ کر منظم کام میں مشغول ہونا آسان نہیں۔ اس کے لیے فکری سطح پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور شعوری سطح پر آرام اور لذت سے کنارہ کشی اختیار کر کے مقصد سے لگن کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اہداف حاصل کرنے کی تڑپ انسان کو محنت کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ سب کچھ انسان اس لیے کرتا ہے کہ اپنے خالق حقیقی کی رضا حاصل کر سکے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں پوشیدہ خیالات تک کو جانتا ہے، اور جب وہ اپنے بندے کی نیت، خلوص، محبت، لگن اور عبادت میں تسلسل اور غور و فکر میں ثبات دیکھتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اپنے بندے کو نہ نوازے۔ پنجابی صوفیانہ شاعری میں ذکر کا بیان جا بجا ملتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر نے بہت سارے اشعار اس ضمن میں کہے ہیں۔ فریدا تو کریندے جو موئے موئے بھی تو کرن، جنہیں تو نہ کیا تنہیں نہ سنجا تو تن۔ سائیں سندے ناد کھے دائم پری چون، رب نہ بننے پوریا سندے فقیرن۔ مفہوم: اے فرید، خدا کو یاد کرتے کرتے موت آ جانے والوں کی قسمت میں مرنے کے بعد بھی خدا کو یاد کرنا لکھا ہوتا ہے۔ جو خدا کی یاد سے غافل رہے، یوں سمجھو وہ مردوں میں شمار ہوئے۔ اگرچہ خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، مگر پھر بھی اسے محبوب سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، مگر خدا کی قربت محض گودڑی پہن لینے یا گلیوں کی خاک چھاننے سے حاصل نہیں ہوتی۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاس صرف ایک کفن رکھ لینا چاہیے اور باقی سب کچھ اللہ کے نام پہ دے دینا چاہیے۔
کفن ہی وہ واحد لباس ہے یا اس دنیا کا ساز و سامان ہے جو ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ کفن وہ شے ہے کہ جاتے وقت ہماری برہنگی کا عیب چھپا لیتا ہے۔ کفن کے علاوہ انسان اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ اگر یہی صورت ہے تو پھر کیوں نہ انسان اپنی زندگی ہی میں مال و متاع کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے، کیونکہ کفن کے علاوہ غیر مادی اشیاء جو ہمارے ساتھ جائیں گی وہ ہمارے اعمال ہیں جنہوں نے روز قیامت ساری کہانی بیان کرنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے ساتھ وہ کچھ لے کر جائیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ ساز و سامان نہ صرف یہی رہ جائے گا بلکہ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ ذکر کی اہمیت کے متعلق بابا جی فرماتے ہیں، فریدا جاں جاں جیویں دنی تے تاں تاں پھرا لکھ، درگاہ سچا تاں تھیویں جاں کھپن مول نہ رکھ۔ مفہوم، اے فرید جب تک دنیا میں زندگی باقی ہے تب تک اپنے رب کی مالا جپتے رہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہی معمول اس کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار ہے کہ ایک کفن کے سوا باقی سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض گزارتی، یا رسول اللہ آپ اتنا قیام کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذکر کی اسی اہمیت کے پیش نظر ذیل کے شعر میں بابا جی فرماتے ہیں، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے اور پیغام الہی پر غور و فکر کرنے والے ہمیشہ بامراد رہتے ہیں۔ فریدا جاگنا ہی تا جاگ ہوئی آ ای پر بات، اس جاگن نو پچھتائیں گا گنا سویں گا رات۔ اے فرید اگر جاگنا چاہتے ہو تو یہی وقت ہے جاگنے کا، صبح صادق کے بعد جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دیر تک سوتا رہے گا تو تب عبادت کا وقت گزر چکا ہوگا، تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ رتے عشق خدائے رنگ دیدار کے، وسریا جے نام تے بمی بار تھے، یعنی خدائی عشق میں گرفتار عاشق سرخ رنگ میں رنگے گئے۔ ایسے ہی لوگوں کو خدا کا دیدار نصیب ہوا، مگر وہ جنہیں رب کا نام بھول گیا، یوں سمجھے وہ زمین بوس ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی مصیبت کو دور فرمائے گا، اللہ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی فرمائے گا، اللہ بندے کا مددگار رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کا مددگار رہتا ہے۔ اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلتا ہے، اللہ اس کا جنت کی طرف کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے درس کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں تو اس پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت خداوندی نے ڈانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک کا تذکرہ اپنے قریب رہنے والے فرشتوں میں فرماتے ہیں، اور جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر اسی پس منظر میں فرماتے ہیں، جسا سیراتی وڈیاں ڈو ڈو گانڈنیاں، تم ایک جال نہ سنگنیاں اساں سبے جالنیاں۔ مفہوم، اے غفلت میں پڑے انسان، تو نے کئی راتیں خواب غفلت میں گزار دی ہیں، تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خالق کو یاد نہیں کرتے، حالانکہ اللہ والوں کا ہر لمحہ اس کی یاد میں گزرتا ہے۔ فریدا جاگنا ہی تا جاگ راتڑی ہب ودانیاں، جے منہ متھے بھاگ پری وسارن نہ کرن۔ اے فرید دل میں جاگنے کی تڑپ ہے تو یہی وقت بہترین ہے، پہلے ہی تو نے رات سو کر گزار دی ہے۔ اگر تجھے آخرت کا تھوڑا سا بھی خیال ہے تو محبوب کو ہر لمحہ یاد کیا کر اور اسے کسی بھی لمحے دل سے نہ بلانا۔ حدیث نبوی ہے کہ اعمال
लिखने वाले फरिश्तों के सिवा अल्लाह ताला के चंद फरिश्ते ऐसे हैं जो राह गुजारों और बाज़ारों में अहले ज़िक्र को तलाश करते फिरते हैं। जब वो ज़ाकिरों के गिरोह को कहीं ज़िक्र करते हुए देखते हैं तो एक दूसरे को पुकारते हैं कि आओ तुम्हारा मतलब हासिल हो गया। पास जमा होकर अपने परों से डांप लेते हैं। जब वो ज़िक्र से फारग होते हैं तो फरिश्ते आसमानों पर जाते हैं। पस हक ताला अपने बंदों के हाल को बखूबी जानता है। फरिश्तों से पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को कैसे देखा। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, खुदाया तेरी हम्दो सना करते थे और तुझको बुजुर्गी से याद करते थे और तुझको तमाम अयूब और नकूस से पाक बयान करते थे। खुदा ताला फरमाता है कि उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि नहीं देखा है। फिर खुदा ताला फरमाता है कि अगर वो मुझे देख लें तो फिर उनका क्या हाल हो। मलाइका अर्ज़ करते हैं कि फिर वो इससे ज़्यादा बुजुर्गी और पाकीज़गी से याद करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे क्या तलब करते थे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि बहिश्त मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने बहिश्त को देखा है। फरिश्ते कहते हैं कि नहीं देखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो बहिश्त को देख लें तो फिर क्या हाल हो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि फिर इससे ज़्यादा इसकी तलब और हिर्स करें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो किस चीज़ से डरते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि दोज़ख से डरते हैं और तुझसे पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने दोज़ख को देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि नहीं देखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर देख लें तो फिर क्या हाल हो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि फिर इससे ज़्यादा पनाह मांगे और इससे ज़्यादा डरें और भागें। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि तुम गवाह रहो कि मैंने सबको बख्श दिया। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या रब, इस ज़िक्र की मजलिस में फ़लाँ आदमी ज़िक्र करने के लिए नहीं आया था बल्कि किसी दुनियावी हाजत के लिए आया था और इनमें बैठ गया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग, मैं उसका हमनशीन हूँ जिसने मेरा ज़िक्र किया कि बमुजब मेरे ऐसे हमनशीन हैं कि मेरा हमनशीन बदबख्त नहीं होता। ये तवील हदीस ज़िक्र की अहमियत को नहायत वाज़े करती है। आइए अब बाबा गंज शक्कर का ये दौड़ा मुलाजा करते हैं जिसमें ज़िक्र की अहमियत वाज़े की गई है। फरीदा परी वसारन ब्यारा वन को बद चवेन कंचन रास वसार कर मुट्ठी दूड़ बरेन। मफ़हूम, ए फरीद, महबूब के ज़िक्र से गफलत का नतीजा अक्लो खिरद और होश व हवास से बेगानगी की सूरत निकला। तुम्हें चाहिए कि बेगानगी की इस कैफियत से निकलो वरना मुट्ठी भर खाक के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। फरीदा कुकिंदड़ा ता कूक कदे ता रब सुनेसिया, निकल वैसी फूक ता फिर कूक न होसिया। ए फरीद, अगर तू कूक पुकार करता है तो इस अमल को जारी रख, क्योंकि एक न एक दिन अल्लाह ताला तेरी आवाज़ ज़रूर सुनेगा। वैसे भी ये आवाज़ें लगाने और ज़िक्र करने का अमल ज़िंदा रहने तक का है। जो ही सांस की डोरी टूटेगी ये अमल रुक जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि ज़िंदगी जैसी कीमती मता को बनिए के पास रहन रख दिया और इसके एवज़ दौलत हासिल करके खा पी लिया। अब असल मालिक जिसने ज़िंदगी को तुम्हें अमानत के तौर पर दिया था वो हिसाब मांगेगा तो उस वक्त जो कुछ बंदे पर गुजरेगी वो अहवाल देखने के लायक होगा। फरमाते हैं, फरीदा खेती उजड़ी गिरवी पर रया माल, साहिब लेखा मंगसी बंदे कौन हवाल। ए फरीद, तेरी ऐशो इशरत से बड़ी ज़िंदगी से ज़ाहिर होता है कि तूने अपने अमाल की खेती उजाड़ दी है, गोया अपना सब कुछ दूसरों के पास गिरवी रख कर छोड़ा है। अब जब अल्लाह ताला तेरे अमाल की बाबत पूछेगा तो क्या हाल होगा तेरा? क्या तेरे पास इन सवालों का कोई जवाब है? कूक फरीदा कूक तू ज्यों राखा जवार, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। मफ़हूम, ए फरीद, हर वक्त कूक पुकार करता रह जैसे फसलों का निगहबान परिंदों को फसल से दूर रखने के लिए शोर पुकार करता रहता है। ए फरीद, ये कूक पुकार टांडा गिरने तक किए जाए, यानी मरते दम तक खुदा का जिक्र करते रहना चाहिए। इसका कुछ मफहूम ऐसे बनता है कि ए फरीद, तू ज्वार के खेत के रखवाले की तरह शोर मचाकर अपने खेत की हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम देता रहे।
तेरा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहे जब तक हर पौधे की अंदरूनी सलाहियतें निखर कर सामने नहीं आ जाती। तेरी जिम्मेदारी उस वक्त ख़त्म होगी जब पौधा फल देने के बाद तभी मौत मर जाएगा। इस सलूक के पस मंज़र में बाबा जी कहना चाहते हैं कि हर मज़लूम को ये हक़ है कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। अल्लाह तबारक ताला के अता करदा ख़जानों से फ़ायदा उठाने का हक़ हर फ़र्द बशर को हासिल है और ये ज़िम्मेदारी मुआशरे पर आयद होती है कि वो रखवाले और मुहाफ़िज़ का किरदार अदा करते हुए हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करे, ता वक्त ये कि हर इंसान को अपनी सलाहियतों को उभारने का मुसावी मौका मुयस्सर ना आ जाए। फरीदा पाँव पसार के अठे पैर ही सौं, लेखा कोई ना पुछी जे विचों जावी हूँ। ए फरीद पाँव फैला के हर वक्त चारपाई पे सोता रहे ताकि जब कोई हिसाब किताब करे तो तेरे नामा माल में ना कोई नेक अमल हो और ना बुरा। हज़रत शाह हुसैन के यहाँ भी ज़िक्र अल्लाह की अहमियत पाई जाती है। उन्होंने मुख्तलिफ़ मिसालें देकर इंसान को तरग़ीब दी है कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त के बगैर अधूरा और नामुकम्मल है। चंद मिसालें मुलाहिज़ा हों। वेला सिमरन दा नी उठी राम ध्याए, हथ मले मल पछोतासी जद वैसी आ वक्त विहाए। इस तिड़े तू भर भर गईयां अपनी वार लंघाए, कहे हुसैन फ़कीर साईं दा आतन फेरा पाए। मफ़हूम, इबादत का वक्त हुआ, उठ और अल्लाह का जिक्र कर। जब वक्त गुजर जाएगा तो फिर हाथ मलेगा और पछताएगा। इस पंगट से सब पानी भर भर कर जा चुकी हैं, तू भी अपनी बारी पर पानी भर ले। कुछ ने पानी भर लिया है, कुछ भर कर जा चुकी हैं, कुछ घर पहुंच चुकी जबकि कुछ अभी रास्ते में हैं। यानी दुनिया में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है और कुछ पहले ही जा चुके हैं। अल्लाह का फ़कीर हुसैन कहता है, त्रिंजन यानी आतन का चक्कर काट ले, यानी नेक काम कर ले। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो वक्त को ज़ाया करता है वक्त उसे ज़ाया कर देता है। जो वक्त की कदर नहीं करते बिलाकर पछतावा उनका मुकद्दर बनता है। मशहूर कहावत है, अब पछताए कहावत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। शाह हुसैन के मुताबिक इबादत का असल वक्त जवानी है। अगर जवानी में रब की इबादत ना की जाए तो बुढ़ापे में सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐसा लगता है शाह हुसैन के ज़हन में कुरान पाक की यही आयत बतौर पस मंज़र मौजूद थी। शाह हुसैन एक और जगह फरमाते हैं, एक दिन तेनू सपना थीसन गलियां बाबल वालियां वो, उड़ गए बौर फुलां दे कोलों सन पतरां सन डालियां। जित तन लगे सोई तन जाने होर गल्लां करन सुखालियां। रह वे काजी दिल नहीं राजी गल्लां होइयां तां होवन वालियां। सोई राती लेखे पौसण जो नाल साहिब दे जालियां। नाव हुसैना ते ज़ात जुलाहा गालियां देंदियां तानियां वालियां। मफ़हूम, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुझे बाबल की गलियां ख्वाब के जैसी मालूम होंगी। फूलों से बमरे उड़ चुके जिनकी वजह से पत्ते और शाखें भी उदास हैं। जिस बंदे को गम या ज़ख्म लगता है वही उसका दर्द महसूस करता है। बाकी सब तो यूं ही बातें बनाते हैं। काजी तुम मुझसे दूर रह, मेरा दिल तुझसे मुतमईन नहीं। जो बातें मुकद्दर में लिखी हों वो वकूअ पज़ीर होकर रहती हैं। वही रातें हिसाब में शुमार होंगी जो खुदा के हुजूर इबादत में बसर की जाएं। मेरा नाम हुसैन है जबकि ज़ात का जुलाहा हूँ, इसीलिए तानियाँ वालियाँ यानी अपनी बरादरी वालियाँ मुझे दुश्नाम तराजी का निशाना बना रही हैं। इंसानी गवाह आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जाते हैं ताकि सांसों की जंजीर टूट जाती है। शाह हुसैन इंसान को गफलत से बेदारी और होशियारी का दर्स देते हैं ताकि ज़िंदगी की मोहलत को ख़ास तौर पर वो अयाम जब इंसान की ताकत बहाल होती है गनीमत जानकर अच्छे अमाल से अपने दामन को भर ले। वो इंसान को इस नदामत से बचाना चाहते हैं जो उसे रोज़े हिसाब हो सकती है। फरमाते हैं, एवें गई विहाए कोई दम याद न कीता, रही वो नाए तनाए कोई गज़ पाड़ न लीता। कोरा गई हंडाए कोई रंगदार न लीता, बरया सर लीलाए कोई बुक जोल न पीता। कहे हुसैन गदाए चलदियां विदा न कीता।
यानी जिंदगी यूं ही खेल में गुजर गई और ताकत रखने के बावजूद कोई नेक काम ना कर सका और ना ही रब को याद किया। गोया मैं यूं ही मालो दौलत इकट्ठा करने में मसरूफ़ रहा और कोई नेक अमल ना कर सका। यहाँ सब नेकियां करने में मसरूफ़ रहे, जबकि मेरा नामाए माल कोरे कपड़े की तरह बेदाग रहा, यानी इस पे खुदा की मोहब्बत का रंग ना चढ़ा सका और आखिरत की फिक्र ना की। दुनिया का तालाब लबालब भरा हुआ था, मगर मैं चुल्लू भर पानी भी ना पी सका। यानी दुनिया में नेकियां करने और अच्छे काम के लाखों मौके हाथ आए, मगर अपनी आकबत नाअंदेशी के बायस इनसे फ़ायदा ना उठा सका और वक्त गुजर गया। इसीलिए तो हुसैन फ़कीर एलानिया कहता है कि बिलाकर तू पछताएगा कि तेरे आखिरी वक्त में भी तेरे साथ कोई ना होगा और तुझे अलविदा कहने कोई ना आएगा। ये सब इसलिए हुआ कि तूने किसी से इंसानी बुनियादों पे ताल्लुकात उस्तवार करना गवारा ना किया और अकेलेपन में ज़िंदगी गुजार दी। सूफियाना तालीमात का निचोड़ इंसान में बेदारी पैदा करना है। सूफिया बार बार तलकीन करते हैं कि इंसान को होशमंदी से काम लेना चाहिए। गफलत इंसान का बहुत नुकसान कर सकती है। बेदार इंसान ही इस काबिल होता है कि अपने नफ़ा और नुकसान का इदराक कर सके। लेकिन अगर इंसान अपने शऊर की आंख से नुकसानदेह चीज़ों को देखने का अहल ही नहीं, तो वो अपनी हिफाजत कैसे कर सकेगा। बेदारी ही की वजह से जिद्दोजहद मुमकिन हो सकती है और विसाल के लिए जिद्दोजहद बुनियादी शर्त है। शाह हुसैन की ज़ुबानी सुने। गुम च रखड़िया तेरी कत्तन वाली जीवे, नलियां वट्टन वाली जीवे। बुढ़ा होयों शाह हुसैना दंदी जीरा पईयां, उठ सवेरे ढूंढन लगों संज दियां जो गईयां। हरदम नाल संभाल साईं दा तां तू अस्थरी थीवें। चरखा बोले साईं साईं बायड़ बोले तू, कहे हुसैन फ़कीर साईं दा मैं नहीं सब तू। यानी चरखे घूम तेरे काटने वाले की खैर सदा सलामत रहे। शाह हुसैन अब बूढ़ा हो चुका, क्योंकि उसके दांतों के दरमियान खाली जगह हो चुकी है और रीखें पैदा हो चुकी हैं। ये बुढ़ापे की निशानी होती है। रात होते ही जो चली गई थी उन्हें सहरी के वक्त उठकर तलाश कर रहे हो। उन्हें तो उस वक्त तलाश करना चाहिए था जब वो तुमसे विदा हुई थी। हर वक्त खुदा का नाम पुकारा कर ताकि तू लाफानी हो जाए, वरना यहाँ तो जवाल ही जवाल तेरा मुकद्दर है। क्या तूने कभी सुना है ये चरखा साईं साईं की आवाज़ निकालता रहता है और इसकी माल तू पुकारती रहती है। इसीलिए तो साईं हुसैन कहता है कि मैं नहीं बल्कि सब कुछ तू ही तू है। नी तेनू रब ना भुली दुआ फकीरां दी एहा, रब ना भुली सब कुछ भुली रब ना भुलन जिहा। सोना रूपा सब छल वैसी इश्क ना लगदा लेहा। होरना नाल हसदी खडेंदी शो नाल घूंघट केहा। चारे नैन गड़ा वड होए विच वचोला केहा। इश्क चुबारे पायो जाती हुण तेनू गम केहा। आईए दी सौं बाबल दी सौं गल चंगेरड़ी एहा। जिस जोबन दा मान करेंदी जल बल थेसी खेहा। इश्क फकीरां दा कायम दायम कबो न थीवे बेहा। उछल नदियां तारू होइयां विच बरेता केहा। कहे हुसैन फ़कीर साईं दा मरना ता माना केहा। ऐ लड़की तुझे खुदा ना भूले। फ़कीरों की यही दुआ है कि तू सब कुछ भूल जाए, लेकिन रब को ना भूले, क्योंकि वो भूलने के लायक नहीं। तेरा सोना रंग रूप तुझे धोखा दे जाएगा। इश्क का रोग एक मर्तबा लग जाए तो फिर उतरने का नाम नहीं लेता। जब गैरों के साथ हंसती खेलती हो तो फिर महबूब से पर्दा क्यों करती हो। जब बराह रास्त आंखें चार हो गई तो फिर दरमियान में पर्दा कैसा रह जाता। जब तुमने इश्क चुबारे पे नज़रें जमा ली तो फिर अब गम कैसा। आने वाले की कसम बाबल की कसम, अच्छी बात तो यही है तुम जिस जवानी का मान कर रही हो एक दिन ये जलकर खाक में मिल जाएगी। फ़कीरों का इश्क अलबत्ता हमेशा कायम रहता है। नदी में रेत भर जाए तो पानी घुटने घुटने रह जाता है, जहाँ छोटे बड़े उछल कूद करते हैं, मगर जब रेत नीचे से ख़त्म हो जाए तो फिर ये गहरी हो जाती है और फिर पैराक ही इनमें कदम रख सकता है और कभी बासी नहीं होता। उछलने वाली नदियाँ गहरी हो चुकी हैं, अब बीच में रेत का क्या काम।
حسین سائیں کا فقیر کہتا ہے جب بالآخر مرنا ہی ہے تو اترانا کس بات کا۔ شاہ حسین دعا مانگتے ہیں، اے دوست تجھے رب تعالیٰ کسی صورت میں نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیا کی شان و شوکت کو بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں، اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی مال و دولت آنی جانی چیز ہے، مگر اللہ کی ذات کو بھولنے سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے کام آتی ہے۔ ہم دنیاوی عزت و ذلت، جوانی اور صحت کے لیے مرے جاتے ہیں، معاشرے میں آپسی تعلقات بڑھانے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے وفاداریاں نبھاتے پھرتے ہیں، دنیا میں نام پیدا کرنے کی چاہت میں اگلے جہان پہنچ جاتے ہیں، مگر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کائنات کے حقیقی مالک اور رب سے وفاداری اور محبت ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ آج تک ایسا تو ہوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرنے والے لوگوں کی لان تان کا نشانہ بنے، جبکہ دنیاوی عیش و عشرت میں پڑنے والوں پر سبھی طنز کے تیر برساتے ہیں۔ شاہ حسین ماں جیسی عظیم ہستی اور باپ جیسی شفیق انسان کی قسم کھا کر اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ رب تعالیٰ کو ہر پل یاد رکھا جائے۔ اس کی دلیل وہ یوں دیتے ہیں کہ بالآخر ہم سب کو روز قیامت اس کے حضور اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ تجھے گور بلاوے گر آورے، جو جاوے سو رہ نہ پاوے، میر ملک امراورے، ہر دم نام سنبھال سائیندہ، اے اوسر ای داورے، کہے حسین فقیر نہ مانا، آخر خاک سماورے۔ یعنی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے قبر اپنی جانب متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، آؤ اپنے اصلی گھر کی جانب آؤ۔ جو یہاں آتا ہے تھوڑا عرصہ ہی قیام کرتا ہے، اس میں امیر غریب بادشاہ اور فقیر کی کوئی قید نہیں، لہٰذا ہر وقت رب کا نام پکارا کر، اصل کامیابی اسی میں ہے، اور ویسے بھی یہی موقع مناسب ہے۔ حسین فقیر کہتا ہے بالآخر سب کو مٹی تلے چلے جانا ہے۔ ایک اور جگہ دیکھیں، تھوڑی رہ گئی راتڑی شو رامیوں ناہی، دن سوئی سواگنی چن پیا گل باہی، ایک ہنیری کوٹھڑی دوا دیوانہ باتی، وہاں پکڑ جم لے چلے کوئی سنگ نہ ساتھی، ستی رہی کلکھنی جاگی پر باگی، جاگن کی بدھ سو لیے جس انتر لاگی، کہے حسین سہیلیو شو کت بدھ پئیے، کر صاحب دی بندگی راہ جاگرت رہیے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا تو جانتی ہے رات کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، مگر ابھی تک تو نے محبوب کو راضی نہیں کیا۔ وہی سہاگن خوش نصیب کہلاتی ہے جس کی باہیں اپنے محبوب کے گلے میں پڑی ہوں۔ موت کا فرشتہ تیرا ہاتھ تھامے چلا جا رہا ہے، لیکن ایک تو ہے کہ تیرا کوئی سنگی ساتھی نہیں۔ میں بے عمل سوئی رہی، نتیجتاً کچھ بھی حاصل نہ کر سکی، جبکہ نصیبوں والیاں وقت پہ بیدار ہوئیں اور محبوب کے سنگ جا رہی ہیں۔ جاگنے کا دھیان انہیں ہی ہوتا ہے جن کے من میں محبوب کی لگن ہوتی ہے، جبکہ بدقسمت سوئی رہتی ہیں۔ حسین کہتا ہے سہیلیو، خدا کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا قرب حاصل کرنا ہے تو راتوں کو جاگ کر اس کی بندگی کرو۔ شاہ حسین ایک اور جگہ فرماتے ہیں، راتی سویں دیہی پھر دی تو وتے، تیرا کھیڈن نال پیار جندو کدی اٹھ رام سمار جندو، ساوڑے گھر البت جانا پیوڑے دن چار جندو، اج تیرے مکلارو آئے رہے نہ کوئی پچار جندو، کہے حسین فقیر سائیں دا آونے ہی وار جندو۔ رات کو جب عبادت کا وقت ہوتا ہے خراٹے برتی رہتی ہو اور دن میں ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہو، میری جان ایسا لگتا ہے تجھے محض کھیلنے سے محبت ہے۔ راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کر، زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، آخرکار تجھے سسرال کے لیے رخصت ہونا ہے، لو آج تیرا مکلا والے نے پہنچ گئے۔ اے زندگانی، اب سوچ بچار اور بہانہ سازی کا کوئی موقع نہیں رہا۔ حسین فقیر کہتا ہے یہاں یعنی اس دنیا میں محض ایک بار ہی آنا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے کلام میں سے چند مثالیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں جس میں ذکر اللہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ فاللہ چنبے دی بوٹی، میرے من وچ مرشد لاندا ہو، جس گت اتے سونا راضی ہوندا اوہ گت سکھاندا ہو،
हर दम याद रखे हर वेले सोना, उठांदा बहांदा हूँ, आप समझ समझींदा बाहू, आप आपे बन जांदा हूँ। यानी अल्लाह की याद का पौधा मुर्शद ने मेरे दिल में लगाया है, तभी तो वो मेरी वैसी ही हालत बना देता है जैसे उसे पसंद आती हो। वो हर वक्त मुझे याद रखता है, वही मुझे उठाता और वही बिठाता है। बाहू वही मुझे बात को समझाने वाला है और वही मुझ में समाया हुआ है। जो दम गाफल सौ दम काफर, सानू मुर्शद ऐ पढ़ाया हो। सुनिया सुखन गया खल अखी, सुनिया सुखन गईयां खुल अखी, असां चित मौला वल लाया हो। कीती जान हवाले रब दे, असां ऐसा इश्क कमाया हो। मरण तो अगे मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हो। यानी मुर्शद ने हमें ये सबक पढ़ाया है कि हर घड़ी और पल अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्फ करनी चाहिए। यूँ ही हमारे कानों में मुर्शद की ये बात पड़ी, हमारे अंदर की आंखें खुल गईं और हमारा दिल अल्लाह की तरफ राग़िब हो गया। महबूब के साथ हमारा इश्क इस हद तक बढ़ गया कि हमने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। बाहू अगर हम मौत से पहले ख़ुद को मार डालें तब ही ज़िंदगी का मकसद पूरा किया जा सकता है। फजरी वेले वक्त सवेले आन करन मजदूरी हो, कावां इल्लां हिकसी गल्लां त्रीजी रली चंडूरी हो। मारन चुंझां ते करन मुशक्कत, पुट पुट सुटन अंगूरी हो। सारी उम्र पुटेंदियां गुजरी बाहू, कदी ना पई या पूरी हो। यानी लोग सुबह सवेरे उठकर कमाई करने के लिए मुशक्क़त में मसरूफ़ हो जाते हैं। उनकी मिसाल कव्वों, चीलों और चंडोल की सी है जो अपनी चोंचों से ज़मीन पर उगे नुज़ायदा पौधों को बड़ी मेहनत से उखाड़ते हैं। बाहू इनकी तमाम उम्र छोटे मोटे पौधों को उखाड़ने में लग जाती है, मगर फिर भी उनका पेट नहीं भरता। हज़रत सुल्तान बाहू एक और जगह फरमाते हैं, कल्ब न हिलिया ता क्या होया ज़िक्र ज़बानी हो। कल्बी रूही अख्फी सिरी सब्बे राह हैरानी हो। शहरक तो नज़दीक जलेंदा यार ना मिलियोस जानी हो। नाम फ़कीर तिन्हां दा बाहू जेड़े वसदे ला मकानी हो। यानी अगर अल्लाह के ज़िक्र से कल्ब की हालत में तब्दीली ना आए तो महज ज़ुबानी ज़िक्र का कोई फ़ायदा नहीं। कल्बी रूही अख्फी सिरी सब अल्लाह को याद करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं और इन सब का हासिल हमें तो हैरानी की सूरत ही मिला है। अल्लाह बंदे को शाहराग से भी नज़दीक है, मगर इतनी नज़दीकी के बावजूद वो दुनियादारों को नहीं मिलता। बाहू फ़कीर तो वो होते हैं जो महबूब से वासल होने के बायस लामकान में बसेरा किए होते हैं। कर अबादत पच्छों तासें तेंडी उम्रां चार दिहाड़े हो। थी सुदागर कर लै सौदा जां जां हट ना ताड़े हो। मत जानी दिल ज़ौक मने मौत मरेंदी दाड़े हो। चौरां साधां रल पूर भरिया रब सलामत चाड़े हो। यानी ऐ बंदे अभी तेरे पास वक्त है, खुदा की इबादत कर ले वरना बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी महज 4 दिन की है। याद रख इस दुनिया में तेरा फेरा महज व्यापारी की मानंद और इस दुनिया की मिसाल एक दुकान की मानंद है। इसलिए जब तक ये दुकान खुली है यहाँ से अपनी मर्ज़ी का सौदा ख़रीद ले। अगर तेरी तलब और चाहत को महबूब मान ले तो ये बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि मौत तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। चोरों और शरीफ लोगों से कश्ती के मुसाफिरों की तादाद मुकम्मल हो गई है, यानी कश्ती में बांध बांध के मुसाफिर बैठ गए हैं। अब खुदा ही इसे बाहिफाजत पार ले जाए। हज़रत सुल्तान बाहू एक और जगह फरमाते हैं, मौतों वाली मौत न मिलसी जै विच इश्क हयाती हो। मौत विसाल थी सी हिको जदों इसम पड़े सी जाती हो। ऐन दे विचों ऐन जो थीवे दूर होवे कुर्बाती हो। हू दा जिक्र हमेश सड़ेंदा बाहू देहां सुख न राती हो। यानी इस आशिक को इश्क हकीकी वाली मौत न मिलेगी कि इस मौत में भी दरअसल ज़िंदगी होती है। ऐसी मौत हासिल करने का तरीका ये है कि मौत से पहले मरने की तैयारी की जाए, क्योंकि इसी मौत में इश्क की ज़िंदगी है। ये मौत और महबूब से नज़दीकी सिक्के के 2 रूप हैं और ये इसमें ज़ात के वजीफ़े के बाद ही मिलते हैं। जिस वक्त ऐन में से अयून दिखाई दे तो इसके लिए कराबत और कुर्बत का मुकाम मामूली दिखाई देता है। बाहू हमें तो अल्लाह ताला का ज़िक्र हमेशा आग में जलाने और तड़पाने के जैसा लगता है कि इसके बायस हमें न रात को सुकून और न दिन को चैन नसीब होता है। आबिद जब मुर्शिद का अंदरूनी रूप देखता है तो फिर इसकी लगन मज़ीद बढ़ जाती है, जिससे उसका रूहानी सफ़र मुर्शिद की रहनुमाई में शुरू हो जाता है।
हज़रत बुल्ले शाह फरमाते हैं, उल्टी गंगा बहायो रे साधु तब हर दर्शन पाए, प्रेम की पूणी हाथ में लीजो, गुंज मरोड़ी पढ़ने न दीजो, ज्ञान का तकला ध्यान का चरखा उल्टा फेर बवाए, उल्टे पाँव पर कुंभ करन जाए, तब लंका का भेद उपाय, दैंसर लुटिया हुण लक्षण बाकी, दैंसर लुटिया हुण लक्ष्मण बाकी, तब अनहद नाद बजाए, ऐ गत गुर की परयों पावे, गुर का सेवक तभी सदाए, अमृत मंडल मुँह टुब ऐसी दे के हरि हर हो जाए, उल्टी गंगा बहायो रे साधु तब हर दर्शन पाए। यानी साधु खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए तुझे उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रियाजत और तज़किए नफ्स से ही अल्लाह ताला के नूर की ज़ियारत मुमकिन है। यानी मुरीद के अंदर मुर्शद का नूरानी जलवा ज़ाहिर होगा तो वो उसका सच्चा मुरीद बनेगा। इधर उधर के तमाम ताल्लुकात ख़त्म करना पड़ेंगे, रात दिन इबादत और रियाजत और नफ्स कशी करना होगी। दिल के अकलीम को गैरियत और दुई की उलझनों से बचाना होगा, उस रब की मोहब्बत में गुम होना पड़ेगा। साधु खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए तुझे उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी। इंसानी ज़िंदगी को गनीमत जानते हुए सच्चा आशिक वस्ले यार से हमकिनार होता है। वो दुनियादारी और नफसानी ख्वाहिशात को जमेलों में नहीं उलझता। मैं पुछां शौ दियां वाटा नहीं, कोई करे असा नाल बाता नहीं, भुले रब नाम न जपिया, गफलत अंदर यार है छुपिया, ओ सिद्ध पुरखा तेरे अंदर वसिया, लगियां नफ्स दियां चाटा नहीं, मैं पुछां शौ दियां वाटा नहीं, कोई करे असा नाल बाता नहीं, जप लै ना हो बोली बाली, मत तू सदें मुख वकाली, मत तू सदें मुख मुकाली। यानी मैं इससे राह महबूब के बारे में पूछूं, काश कोई हमसे बातें करे, भूले रहे उसके नाम का विर्द ना किया और गफलत में पड़े रहे। ए इंसान, वो तेरे अंदर बसता है लेकिन तुझे नफ्स के चस्कों ने गुमराह कर रखा है। मैं इससे राह महबूब के बारे में पूछूं, काश कोई हमसे बातें करे, तो उसे याद किया कर और बोलपन से काम न लिया कर, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुझे काले मुंह वाली कहें। जिक्र की अहमियत के मुतल्लिक़ हज़रत हाशिम शाह यूँ लिखते हैं, बेबुनियाद जहान पछाने तद जोश करे दिल मेरा, चाहे तर्क कीती हर तरफों ते करे ज्ञान बतेरा, पर है हिरस हवा जहानी बैड़ा तोड़न बहुत उखेड़ा, हाशिम नींद उगाड़ सवेरे नहीं दिसदा सूल बलेरा। यानी बेबुनियाद और नापायदार जहान के मुतल्लिक़ जो ही इल्म हुआ तो फिर दिल जोश व खरोश से खुदा की राह में मसरूफ़ होने लगा। फिर उसने हर तरफ से तर्क ताल्लुक़ कर लिया और दिन रात ज़ुहद इबादत करने लगा। दिन रात की इबादत और ज़िक्र व अज़कार के बावजूद दुनियावी हिर्स व लालच को छोड़ना मुश्किल काम होता है। हाशिम, बेहतर है शब बेदारी किया कर और सुबह सवेरे खुदा की इबादत कर, तेरा रोग पुराना हो चुका है। यानी तुझे दुनियावी लोभ लालच ने चारों तरफ से बुरी तरह घेर रखा है और तेरा दिल इसमें बुरी तरह फंस चुका है। ऐसे पुराने रोग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि सहर खेज़ी की जाए। वाज़े रहे सिर्फ ज़िक्र काफ़ी नहीं, ज़िक्र अल्लाह दरअसल गौर व फिक्र का नाम है, सिर्फ तस्बीह फेरना मसले का हल नहीं। इसीलिए तो सूफिया ने इस पहलू को मद्देनज़र रखा। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ज़िक्र फ़िक्र सब उरे उरे रे, जां जां फ़िदा ना फ़ानी हूँ, फ़िदा फ़ानी तिन्हां हासिल जेड़े वसन ला मकानी हो, फ़िदा फ़ानी उन्हां नूं होया जिन्हां चखी इश्क दी कहानी हो, बाहू हू दा ज़िक्र सड़ेंदा हरदम यार ना मिलिया जानी हो। यानी ज़िक्र फ़िक्र सब इधर उधर की बातें हैं, जब तक जान कुर्बान ना की जाए मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। याद रहे, कुर्बान वो होते हैं जो इस दुनिया से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, यानी फ़ना फ़िल्लाह होने की सआदत उन्हें नसीब होती है, जो सीने पे इश्क़ हकीकी के तीर खाते हैं। बाहू महबूब का ज़िक्र हमें हर दम अपनी आग में जलाता रहता है और जब तक वो नहीं मिलता हम यूं ही जलते रहेंगे। ज़िक्र कनो कर फ़िक्र हमेशा, ए लफ्ज़ तिखा तलवारों हूँ, कड्डण आहीं ते जान जलावन फ़िक्र करन इसरारों हूँ, ज़ाकर सोई जेड़े फ़िक्र कमावन हिक पलक न फारग यारों हूँ। फ़िक्र दा
फटिया कोई न जीवे, पट्टे मुड पहाड़ों हो, हक दा कलमा आखी बाहू, रब रखे फिक्र दी मारो हो। यानी जिक्र की बजाय हमेशा फ़िक्र कर, और ये लफ्ज़ तलवार से भी तीखा है। फ़िक्र करने वाले हयातो कायनात के असरार पर गौर करते हुए आहें भरते हैं और जान को जलाते हैं। अल्लाह को याद करने वाले और ज़िक्र करने वाले सही लोग वही होते हैं जो हमा वक्त गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहते हैं और एक पल भी उससे गाफिल नहीं होते। लेकिन ये गौर व फिक्र यानी अक्ल खिर्द का इस्तेमाल मामूली बात नहीं। इसमें अगर आदमी ज़रा सा भी भटक जाए तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। भटकी हुई फिक्र पहाड़ों को जड़ से उखाड़ देती है। ए बाहू, हमेशा हक का कलमा कहना खुदा सब को फिक्र की मार से बचाए। राती रत्ती नींदर ना आवे, देहा रहे हैरानी हो, आरफ दीगल आरफ जाने क्या जाने नफसानी हो, कार इबादत पछों तासें तेरी ज़ाया गई जवानी हो, हक हजूर इनानू हासिल बाहू जिन्हें मिलिया शाह जिलानी हो। मफहूम, इसका मफहूम कुछ यूँ है, दिल की लगी वालों को रातों को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, जबकि दिन का ज़्यादा वक्त कुदरत इलाही के नज़ारे देखते हुए हैरत में गुजरता है। लेकिन ये आम बात नहीं। आरफ की बात एक आरफ ही समझ सकता है, उसे दुनियादार और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले नहीं समझ सकते। ऐ बंदे, हजूरी के बगैर खाली इबादत से क्या हासिल, बाद में पछताएगा कि जवानी किस काम में ज़ाया कर दी। हजूरी का शर्फ सिर्फ उन्हें हासिल होता है जिन्हें शाह अब्दुल कादिर जिलानी जैसा मुर्शिद कामिल मिला हो। हज़रत बुल्ले शाह ज़िक्र फ़िक्र के लिए तन्हाई का तकाजा करते हैं। झूठे जहान में सच्चे रब से लौ लगाना ही दरअसल ज़िक्र है। फरमाते हैं, बेबन अखी अते कन दोवें गोशे बैठ के बात विचारिए जी, छड़ ख्वाहिशां जग जहान कूड़ा क्या आरफां दा हर दे दारिए जी, पैरी पैन जंजीर बेखाइशी दी ऐस नफ्स नू कैद कर डारिए जी, जान जान देवें जान रब तेरा, बुल्ला शाह ए खुशी गुजारिए जी। यानी आंखें और दोनों कान बंद करके तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करना चाहिए। झूठे जहान की ख्वाहिशात को छोड़ खुदा के बंदों का कहा दिल से मान, पाँव में तरके लज्जते दुनिया की जंजीर पहन और जहाँ तक मुमकिन हो सके नफ्स को कैद करके रख। यहाँ जान देना ही असल ज़िंदगी है। बुल्ले शाह खुशी के साथ अपनी जान प्यारे के सुपुर्द कर। एक और जगह लिखते हैं, गाफ गुजर गमान ते समझ बह के, हनकार दा आसरा कोई नाही, बुध आप संगात चढ़ देखिए जी, पड़ा काठ पखा जिवें बूम माही, आप आत्मा ज्ञान स्वरूप सुता, सदा नहीं फिरदा केड़ा एक जाही, बुल्ला शाह बबीक बचार सीती, खुदी छोड़ खुद होए खसम साई। यानी वहमो गुमान से गुजर जा और बैठ कर गौर व फिक्र करके तकब्बुर नखवत, यानी वहमो गुमान से गुजर जा और बैठ कर गौर व फिक्र करके तकब्बर का कोई सहारा नहीं होता। अपनी अकल को आजमाना चाहिए कि ये दुनिया तो एक सराय की मानिंद है। तो अपनी रूह के इरफान से बेखबर है। खुदा किसी एक जगह नहीं रहता। ऐ बुल्ले शाह, तू कभी अपनी असल के बारे में भी सोचो विचार कर, खुद ही को छोड़, फिर तू खुद ही अपना मालिक बन जाएगा। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अंदर विच नमाज असाडी हिक से जा नतेवे हो, नाल क्याम रकू सजूदे कर तकरार पड़ेवे हो, ए दिल हिजर फराकों सड़िया ऐदम मरे न जीवे हो, सच्चा राह मुहम्मद वाला बाहू जै विच रब लबेवे हो। यानी हम नमाज अपने दिल में एक ही जगह पर अदा करते हैं और इसकी नीयत भी दिल ही में करते हैं। हम ये नमाज क़याम रुकू व सुजूद के साथ मुसलसल अदा करते रहते हैं। मुस्तकिल इबादत और रियाजत के बावजूद न जाने ये दिल किसकी जुदाई में जलता रहता है। सच पूछें तो अब ना जिया जाता है और ना ही मौत आती है। बाहू, हक और सच की राह तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पे चलना है, जिस पे चल के ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुमकिन है। बाहू बाग बहारा खिड़ियाँ नरगस नाज शर्म दाहू, दिल विच काबा सही की तो से पाकों पाक परम दाहू, तालब तलब तवाफ तमामी हुब हजूर हरम दाहू, गया हजाब थी उसे हाजी बाहू जदों बख्शोस राह करम दाहू। यानी बाहू, हर तरफ गुलो गुजार खिले हैं जिन्हें देखकर नरगस और नाज
بھی شرمندہ ہیں، میں نے دل کا کعبہ درست کر لیا ہے، تبھی تو میرا دل پاکیزگی کے ایک کیف آور فضا میں سانس لے رہا ہے۔ اب میرے دل میں کسی اور کو چاہنے کی طلب نہیں، میں تو طواف کرنا بھی بھول گیا ہوں۔ اب اگر دل میں کوئی خواہش ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصول ہے۔ باہو، میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے اٹھ چکے ہیں، اب میں وہ حاجی بن چکا ہوں جس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو یہ تھا کچھ احوال ذکر اللہ کا کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، کن کن لمحوں پہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کام میں، گھر میں، باہر میں، سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پنجابی صوفیانہ شاعری میں بھی ہمیں ذکر کرنے کے بہت سارے حوالے ملتے ہیں، کچھ کا حوالہ ہم نے بیان کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔